We'll include some more reactions, some more examples for reversible reactions. Please note it down. Decomposition of calcium carbonate when carried out in closed vessel is a reversible reaction. It converts into calcium oxide and carbon dioxide gas. As we had already discussed, if this reaction would have been carried out in open container, this wouldn't have been a reversible reaction because CO2 gas will liberate out. Another reaction is PCl5, decomposition of PCl5, phosphorus pentachloride कहते हैं इसको. This forms PCl3, phosphorus trichloride and chlorine gas. Then we can have the combination of hydrogen and iodine, hydrogen gas, iodine gas combines to form hydrogen iodide. These all are various reversible reactions which are to be carried out in a closed vessel. Another one, ये रिएक्शन हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में काफी डिटेल में इसको कवर किया जाएगा. Haber's process, that is N2 plus 3H2 gives 2NH3. काफी कंसिडरेशंस हम इस रिएक्शन के ऊपर डील करेंगे. Haber's process, this is called as Haber's process. This is formation of ammonia. This is a process to synthesize to generate ammonia gas. Haber's process. Okay, so these are some examples for reversible reactions that are to be compulsorily carried out in a closed vessel. Okay, now we are moving towards some more details about equilibrium, about the equilibrium. Okay, so the next title would be characteristics of chemical equilibrium. Characteristics of chemical equilibrium. Characteristics of chemical equilibrium. Characteristics of chemical equilibrium. Now let's see how it is described. The features of chemical equilibrium. The first one is, first point, at equilibrium, the concentration this is the main characteristic. The concentration of each of the reactants, the concentration of each of the reactants and the products becomes constant. Okay, I'll show you how this happens graphically. What is happening during the reaction actually. We'll see this. If we consider a graph between time and concentration, concentration simply means the amount of reactant or product present in the sample in the reaction mixture. If the reaction is like this, A plus B
gives C plus D. Now, initially, when the reaction hasn't started, when the reaction has not started, that means at time t equals to 0, at time t equals to 0, we have the reactants with us. जो भी क्वांटिटी अपन ने रिएक्शन करवाने के लिए अपन ने यूज की है वो पूरी क्वांटिटी उन रिएक्टेंट्स के हमारे पास है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी कोई भी एक रिएक्टेंट अपन बात कर रहे हैं वो यहाँ पर है, मतलब उसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है एट टी इक्वल्स टू 0. एट टी इक्वल्स टू 0 हमारे पास रिएक्टेंट का कोई ना कोई कंसंट्रेशन है. उस टाइम पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 0 है. इस टाइम पर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 0 है क्योंकि रिएक्शन अभी हुई नहीं है तो प्रोडक्ट बना ही नहीं है. ठीक है. अब जैसे जैसे रिएक्शन को अपन ने स्टार्ट किया, हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया, रिएक्शन होना चालू हो चुकी है, तो जैसे ही रिएक्शन होना चालू हुई है वैसे ही वो रिवर्सिबल नहीं हो जाती है कि भाई जैसे सी और डी बने वापस ए और बी बन गए, ऐसा नहीं होता. पहले जैसे ही रिएक्शन का टाइम स्टार्ट हुआ, जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कम होना चालू होगा. रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होना चालू होगा क्योंकि वो रिएक्ट होता जा रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है. तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम तक हुआ. और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पहले 0 था, जैसे से रिएक्शन होती जाएगी इसकी क्वांटिटी बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ना चालू होता है. प्रोडक्ट कंसंट्रेशन देखो बढ़ना चालू होता है, बढ़ता है और बढ़ता है, एक लेवल के बाद आके थोड़ा सा रुकता है. एक टाइम ऐसा आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो अब ध्यान से, एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जहां पे जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ भी मूव करने लग जाता है, और ये दोनों कंसंट्रेशंस उस टाइमिंग के बाद कांस्टेंट हो जाते हैं. उस टाइम के बाद ये दोनों कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि जितना रिएक्टेंट कम हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होकर रिएक्टेंट भी बनाते जा रहे हैं, तो दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है. एंड दिस पॉइंट, द टाइम एट विच दिस हैपेंस is the equilibrium condition. At this point the reaction has reached its equilibrium condition, after which the reactants and product concentrations do not change with time. This is the reduction in the concentration of A or B. This is the increase in the concentration of C or D. That means the product and the reactants. Now, second characteristic, at equilibrium, this is what we discussed just now. वही point इसमें conclude हो रहा है. At equilibrium, the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction and hence, यही पॉइंट एग्जैक्टली हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम में बात की थी. एंड हेंस इक्विलिब्रियम is dynamic in nature. फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इसमें हमेशा बराबर होता है, तो कभी भी रिएक्शन वन साइड होकर रुकेगी नहीं, दोनों तरफ चलता रहता है इक्विलिब्रियम, यानी कि ये डायनेमिक नेचर का होता है. ओके. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम हमारे कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं, a chemical equilibrium can be established
chemical equilibrium can be established only if none of the products, क्योंकि अपने को रिएक्शन को रिवर्स भी लाना है ना, तो रिएक्शन को रिवर्स लाने के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल होना जरूरी है. इफ नन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज अलाउड टू एस्केप आउट, मतलब ना तो गैस फॉर्म में एस्केप होना चाहिए और ना तो प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, क्योंकि प्रेसिपिटेट्स रिएक्ट नहीं करते. अगर पीपीटी बन रहा होगा तो आप रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, वो रिवर्सिबल नहीं होते फिर. और सेपरेट आउट एज सॉलिड, यानी कि पीपीटी बन जाना. सेपरेट आउट एज अ सॉलिड, ऐसा नहीं होना चाहिए. ना तो कोई प्रोडक्ट एस्केप होना चाहिए और ना तो कोई प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट होना चाहिए, तभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर सकते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, equilibrium can be attained from either direction, यानी कि रिएक्टेंट से स्टार्ट करके भी, रिएक्टेंट वाली साइड से भी इसको अप्रोच किया जा सकता है, प्रोडक्ट साइड से भी स्टार्ट किया जा सकता है कि पहले प्रोडक्ट ले लें, उनको पहले रिएक्ट करवाएं, रिएक्टेंट वाला पार्ट जनरेट हो जाए, एंड सो ऑन. मतलब हम किसी भी एक रिएक्शन को पहले स्टार्ट करके इक्विलिब्रियम तक पहुंच सकते हैं. दैट इज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि पहले रिएक्टेंट्स को इंटरेक्ट कराया और प्रोडक्ट जनरेट किया, तो भी इक्विलिब्रियम तक पहुंचा जा सकता है. द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स as well as from products. Fifth point, a catalyst does not alter the state of equilibrium. The catalyst does not alter the state of equilibrium. Okay, this is clearly due to the fact that a catalyst increases the speed of the forward reaction as well as that of a backward reaction to the same extent. अगर सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन कहीं हो रही होती, रिवर्स रिएक्शन नहीं हो रही होती, तो हमारा कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता. लेकिन क्योंकि इक्विलिब्रियम के टाइम पे दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, तो वो दोनों की स्पीड को बराबरी से बढ़ाता है, इसलिए इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता. अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. वो जिस टाइम पे पहले अचीव हो रही थी, जितने तरीके से, जितने रेट से पहले अचीव हो रही थी, वैसे ही बाद में भी अचीव होती है. बिकॉज द रीजन इज द कैटलिस्ट increases the rate of both forward and backward reactions equally. तो इसका जस्टिफिकेशन भी अपने को जरूर इस पॉइंट के आगे अपन इंक्लूड कर लेते हैं. बिकॉज it increases speed of forward as well as backward reaction
equally. तो फिर कैटलिस्ट क्या फर्क डालेगा, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि जिस रिएक्शन में अगर मान लो पहले 1 घंटे बाद इक्विलिब्रियम आ रहा था, तो इसमें 1 घंटे से पहले ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन अगर स्पीड से हुई होगी तो प्रोडक्ट जल्दी बने होंगे और रिएक्टेंट जल्दी कम हुआ होगा, तो जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट ग्राफ पे आने वाला है वो जल्दी आएगा। तो वो इसका अपन एक इफेक्ट जरूर नोट करेंगे यहाँ पे। इट कैन, इसको इस तरीके से इंक्लूड कर लीजिए, द ओनली इफेक्ट, वो एम्फसाइज कर दिया जाए, क्योंकि एटलीस्ट इसके अलावा किसी भी चीज पे इफेक्ट नहीं डालेगा, ना रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे, ना प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पे, ना रेट ऑफ रिएक्शन पे। द ओनली इफेक्ट of catalyst is that equilibrium is attained quickly. Equilibrium is attained quickly. Okay, next coming up, अब हम इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा एक लेवल और अंदर उतर रहे हैं, एक डिफरेंट एस्पेक्ट डील कर रहे हैं यहां से। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ओके। Let's include the statement and we'll talk about it. The rate at which a substance reacts is proportional to its active mass and hence the rate of a chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reactants. ओके, यहाँ पे एक्टिव मास वर्ड को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो मोलैरिटी से। एक्टिव मास मतलब मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। एक्टिव मास जो वर्ड लिखा है ये हमारे माइंड में मोलैरिटी से कनेक्ट होना चाहिए, which is number of moles per unit volume of the reactant जिसको अपन रिएक्ट करवा रहे हैं। तो किसी भी चीज का हम जितना ज्यादा एक्टिव मास लेंगे, यानी हम उसका जितना ज्यादा मोलर या जितना ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे, उतना ही वो रिएक्टेंट उतनी स्पीड से रिएक्ट करेगा।
जितना ज्यादा आप किसी रिएक्टेंट का मास लेंगे उतना ज्यादा स्पीड से वो रिएक्टेंट क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, यानी कि उसका जो रेट है वो उसके एक्टिव मास से प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्शन का जो रेट है वो उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस से प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमारे पास मान लो कि कोई रिएक्शन है, एक मैं सैंपल रिएक्शन आपको करके दिखाता हूं। कोई A टाइम्स A है और B टाइम्स B मोल्स ऑफ B है, और ये दोनों मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर ये दोनों मिलके अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से जो रेट, इस रिएक्शन का जो रेट होगा, जो स्पीड होगी, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने क्या पढ़ा, प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट से। ये कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो पावर में जाने होते हैं, A टाइम्स A B टाइम्स B, उनका प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट। 3 रिएक्टेंट होते तो 3 मल्टीप्लाई होते एंड सो ऑन। एक रिएक्टेंट होता तो एक पे डिपेंड करता। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स थे तो दोनों का कंसंट्रेशन, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन है, ये आप अलग से लिख लेना अगर आपको जानकारी में नहीं हो। द स्क्वायर ब्रैकेट प्लेस्ड एनीवेयर इन दिस चैप्टर मींस कंसंट्रेशन, concentration of that thing. So concentration of A raised to the power of moles, concentration of B raised to the power of their moles, उनका product gives us the rate of reaction. This is law of mass action. Now we are going to apply this law of mass action and discuss further about chemical equilibrium. Next title is law of chemical equilibrium. Law of chemical equilibrium. Law of chemical equilibrium. अभी जो लॉ ऑफ मास एक्शन का कॉन्सेप्ट हमने एक सिंगल वन साइडेड रिएक्शन पे लगाया जिसमें हमने सिर्फ रिएक्टेंट्स की बात करी। अब क्योंकि अपन इक्विलिब्रियम वर्ड इंक्लूड कर चुके हैं, मतलब हमारे पास 2 रिएक्शंस होंगी, एक फॉरवर्ड होगी एक बैकवर्ड होगी, दोनों पे हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करने जा रहे हैं। इसका लॉ का स्टेटमेंट लेते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लेट्स सी, okay, let me take a reaction. For example, if the reaction is this, some A plus B, I am taking 1 mole for right now. उसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स को भी चेंज कर देंगे, वेरिएबल लेंगे C plus D। ये रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब मैं आपको जो स्टेटमेंट दे रहा हूं और हम इस पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन को। अगर हमें इस रिएक्शन के लिए निकालना होता रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर मुझे निकालना होता तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये प्रोपोर्शनल होता उसके रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, यानी कि A और B के, ठीक है, क्लियर है। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट में यहां से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं KF। KF ये मैंने कांस्टेंट ले लिया, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सिंपल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू A इनटू B। ये आ गया हमारे पास क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्योंकि हमने 1 मोल लिए थे इसलिए पावर में हमने 1 लिया हुआ है अभी। दिस इज सम फर्स्ट इक्वेशन फॉर फॉरवर्ड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अब बैकवर्ड रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखेंगे तो उसके लिए जो रिएक्टेंट्स हैं वो तो C और D हैं। बैकवर्ड रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं वो C और D हैं, तो वो उसी पे डिपेंड करेगा, उसी के कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करेगा रेट। प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, वी गॉट अ KB, दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इंक्लूडिंग C एंड D। ये हमने 2 बार लॉ ऑफ मास एक्शन लगा लिया, एक बार फॉरवर्ड के लिए
और एक बार बैकवर्ड के लिए, एक बार फॉरवर्ड और एक बार बैकवर्ड। अब जैसा कि हम इक्विलिब्रियम में जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो बराबर होता है। We are going to use that concept here. We'll apply that thing. Now, since at equilibrium, rate of forward reaction, rate of forward reaction, rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction, is equals to rate of backward reaction. ठीक है, this we know already. This is a characteristic of equilibrium. Rate of forward reaction का expression रख देते हैं KF AB, और इस तरफ है KB C and D. Now, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आई एम फाइंडिंग द रेशियो ऑफ KF अपॉन KB, which will be equals to C D, that is the product concentrations, upon A and B, that is reactant concentrations. This ratio of KF upon KB here is called as equilibrium constant. This is called as equilibrium constant. The ratio of proportionality constant of forward reaction to backward reaction is called equilibrium constant, which can finally be presented as the ratio of product concentrations upon ratio of reactant concentrations. This is called equilibrium constant. इसी पे हमारा आगे का पूरा चैप्टर जो है इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड है. So if I take a general reaction like suppose if we have this reaction, small a times A plus B times B reacting to form C times C and D times D. We have to write the general expression for equilibrium constant that can be presented as product concentrations raised to the power of their coefficients, that is small c, small d, upon reactant concentrations raised to their power of their number of moles or the coefficients BA and B. This is the equilibrium constant for any general reaction. This is also termed as, कई जगह आपको ये Kc लिखा हुआ मिलेगा, ये दोनों एक ही बात है. C is for chemical concentration, है ना. केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखा हुआ कई जगह मिलेगा बुक्स में, तो कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज द सेम थिंग. Kc और K इज द सेम थिंग. अब जो हमने हेड लिया था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये फॉर्मूला ही लॉ है एक्चुअली. इसी को वर्डिंग्स में अपन स्टेट कर देंगे तो वो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बन जाएगा. विल नोट डाउन द स्टेटमेंट फॉर दिस. 1 मार्क के लिए उसको जनरेट करना है. नोट करते हैं. The product of molar concentrations, molar यानी molarity, molar concentrations of the products, molar concentrations of the products, each raised to the power equal to its stoichiometric, यानी बैलेंस्ड कंडीशन में जब रिएक्शन होती है, stoichiometric coefficient
divided by that of reactants, सेम चीज जो अपन ने प्रोडक्ट के लिए लिखी है, that of reactants is constant and is called equilibrium constant and is called equilibrium constant. This is the law of chemical equilibrium that we have stated in the expression form, and this becomes the statement form. Okay. Now, if all the reactants and products are gases, if in the reaction all the reactants and products are gases, then instead of taking its concentration, because we do not find concentrations for gases actually, हम उनके प्रेशर को इंक्लूड करते हैं इस फॉर्मूले में. उनके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है वो प्रेशर के टर्म्स में बनता है. ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैस फॉर्म में हो, है ना. जब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैस फॉर्म में हो तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इस तरीके से चेंज होता है, देखिएगा. इट कैन देन बी रिटन एज Kp, P is for pressure, Kp is equals to pressure of C raised to the power of the number of moles multiplied by pressure of D raised to the power of its coefficient number of moles, pressure of A raised to the number of moles, and pressure of B raised to the power. This is called Kp. इनकी वैल्यूज अलग अलग आती हैं. They are not similar to each other. They are not equivalent. This is the another mode of representing the equilibrium constant in terms of the pressure of the gas, but only when all reactants and products are in gas phase. So instead of taking their concentrations, we can find the equilibrium constant in terms of their pressure. This is called as Kp. It is denoted by Kp. So our next title will be relation between Kp and Kc. And you can expect a question from here. This is a very important topic. यहाँ पे एक न्यूमेरिकल जनरेट हो सकता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है. 1 मार्क क्वेश्चंस भी इसके बीच में जनरेट होते हैं, वो भी मैं आपको शो करूंगा. रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. Okay. If we take a general reaction to be like this, कि some A moles of A are interacting with some B moles of B, generating some C moles of C and D moles of D. इसके लिए अगर हम Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो तो इस तरीके से जनरेट हो जाएगा कि Kc is equals to concentration of C raised to the power C, concentration of D to the power D, including the reactants in the denominator A and B. ये तो Kc का एक्सप्रेशन बना लिया हमने, है ना. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर Kc. अब अगर हम Kp बनाएं, अगर हम ये मान के चलें कि ये सारे गैसियस हैं, तो Kc तो खैर किसी भी चीज का आप लिख तो सकते ही हैं. Kc लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कंसंट्रेशन इंक्लूड किए जा सकते हैं. इसी का अगर हम इसी रिएक्शन का Kp अगर हमने बनाया होता तो वो जनरेट होता कुछ इस तरीके से. प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D, प्रेशर ऑफ A एंड प्रेशर ऑफ B, ये जनरेट हुआ होता. नाउ अब हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन का एप्लीकेशन कर रहे हैं.
आइडियल गैस का इक्वेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर को हमें कंसंट्रेशन से रिलेट करना है। तो उसका कनेक्शन देखिए, PV इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, ये हमें पता है। कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, मोलैरिटी यानी मोल्स बाय वॉल्यूम, तो ये देखिए वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज किया। ये जो N बाई वी है, मोल्स बाय वॉल्यूम, यही तो मोलैरिटी है, यही तो कंसंट्रेशन है एक्चुअली, दिस इज कंसंट्रेशन। यानी प्रेशर इज इक्वल टू होता है CRT, कंसंट्रेशन इंटू R इंटू टी। अब ये जो Kp में जितने भी हमारे पास प्रेशर हैं, इन सबको अपन CRT के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट ऑलरेडी एज अ कांस्टेंट ही है, तो जब हम उसको कनेक्ट करेंगे तो देखते हैं क्या क्या पता चलता है। ऑन अप्लाइंग दिस रिलेशन प्रेशर इज इक्वल टू CRT, मुझे क्या मिलेगा, प्रेशर ऑफ C की जगह मुझे मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू R इंटू टी की पावर में, उस पूरे की पावर में, उस पूरे की पावर में आपको क्या मिलेगा, स्मॉल c। उसके बाद प्रेशर ऑफ D की जगह हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू R इंटू टी होल रेज टू द पावर D। नीचे अपन लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A RT to the power A, and finally concentration of B RT to the power B। इसमें से हम कंसंट्रेशन वाली पावर्स अलग कर देते हैं और R और T के फैक्टर सारे अलग कर देते हैं। R और T का जो फैक्टर है वो अपन अलग कर देते हैं, तो मुझे ये मिलेगा C की पावर में C, D की पावर में D, ये मैंने अलग कर दिया। यहाँ पे देखो RT की पावर C है, यहाँ पे RT की पावर D है, तो जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा RT की पावर C प्लस D, RT की पावर C प्लस D। और अगर मैं नीचे लिखता हूं तो A की पावर A, B की पावर B और RT की पावर देखो A प्लस B आ जाएगा नीचे। नाउ ये जो हम आगे का एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये तो हमारा KC आ गया। ये जो आगे आप एक्सप्रेशन देख रहे हो C, D, A और B वाला, ये तो हमारे लिए KC है, ये पूरा, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये तो KC है, तो इसकी जगह तो अपन KC लिख देते हैं। तो इधर KP आया, ये KC आ चुका है। RT की पावर में सेम बेस है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो C प्लस D में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, A प्लस B सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको इन जनरल लिख देते हैं डेल्टा N। ये जो ऊपर आया है देखो ना, ये क्या है, ये अगर आप चेक करो तो टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, इसको इन जनरल डेल्टा N लिख देते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन KP एंड KC, where delta N is the moles of products minus moles of reactants। डेल्टा N जो कि हम रिएक्शन देख के डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, और ये KP KC का आपको रिलेशन मिल जाता है यहां से, फाइनल रिलेशन बिटवीन KP एंड KC।